Hi, good afternoon. My name is Pratik Gupta and welcome back to my videos on the channel of Unacademy for the Civil Service Examination. So today the topic on which we are going to discuss is about the bad bank. The topic is not new, but it was in news today, so that's why I thought that I need to record a video regarding that. So point is what in this particular video we are going to discuss about that what is bad bank, why the name has been given to it as a बैड बैंक यानी कि गंदा ही बैंक इसे क्यों बोला गया है एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल पार्ट अबाउट इट कि ये कब आया था, क्या इसके बारे में बात की गई थी, वो सब हम बात करेंगे. ठीक है. एंड मोर ओवर विल ऑल्सो टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस बैड बैंक इन केस ऑफ आर कंट्री एंड देन इन द एंड विल टॉक अबाउट कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है. ठीक है. क्योंकि मान के चलिए बैड बैंक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, तो इट्स डेफिनेटली न्यू, बट व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल लेवल it was in 1980s, when the first bad bank was started by one of the bank in USA for the sake of taking care of their stressed assets. ठीक है. तो बात करेंगे हम बैड बैंक के बारे में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So you know this thing that I recently joined Unacademy. Just that first month of my classes are going on with the Unacademy. So the point is what I recently started my plus course on the Unacademy app from 8th of September. And the timing for the batch currently going on is 7 to 9 p.m. 7 to 9 a.m. sorry, that you can simply join and you can take the benefits out of it. And from 10th of October, I'm going to start a comprehensive batch that is going to cover the economics for both prelims as well as mains point of view. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा करंटली अभी GS पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स का UPSC मेंस में आया था, that was one of the paper in which you have most of the economics question, और जितने भी questions उसके अंदर आए except one question I would say दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम माई नोट्स ओनली, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं और जो हम क्लास में मैं आपको हैंड आउट्स प्रोवाइड करता हूँ. ओके. सो फॉर द पर्पस ऑफ getting to know that how the classes are being going on and how the contents are being discussed, then I will request you to simply refer my special classes also on the Unacademy app. आप उनके ऊपर classes को देख सकते हैं and you will be able to get to know the idea that how the things are being done in the case of our classes when it comes to the economics part. चलिए आगे बात करते हैं. You know this thing, Unacademy is the largest learning platform. Then the toppers were part of it. You can also decide to be part of it. Then you can choose the educator as per your liking. Then you can follow us on the Telegram and moreover on the community link of the Unacademy app. Then currently 10% off is going on. So you can use my code PGUPSC for the purpose of getting 10% off. So in the 36th month for the plus courses, you need to pay 2697 after discount. And in case of the iconic courses, you need to pay 4267 per month after getting 10% off. And you can also go for the combo subscription. Here the amount that you need to pay will be 2911 for 36 month, and for the iconic courses it is 4391 that you need to pay. And you can also go for the optional course separately and you can get 10% off by using my code PGUPSC. Then the batches are being started every time. As you know that September 15 was the day when the bilingual and the Hindi medium batches were started. UPSC scholarship combat is going on, so the first winner will get the Samsung mobile phone, and then the other people will be able to get vouchers up to 5,000 rupees of Amazon. Then test series has been started, you can enroll, and iconic benefits, you are aware about it, and then 0% EMI you can also opt by calling on this particular number. Now let's come back to our topic of bad bank. देखिए, जब आप बैड बैंक की बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि इसको बैड क्यों बोला गया है. क्योंकि देखिए बैंक कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, बट फिर भी हमने इस तरह के बैंक को बैड बैंक बोला है. द रीजन बिहाइंड इट, देखिए होता क्या है कि कोई भी जो बैंक है, व्हेन द बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन्स आर बेसिकली बीइंग कॉल्ड एज एन असेट ऑफ द बैंक. ठीक है. असेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए किसी भी बैंक के केस में दो चीजें होती हैं, लाइबिलिटीज and moreover the asset. Liabilities किसी भी बैंक की होती हैं customers के deposit. Whatever amount of money you people are being keeping in a bank, that the bank need to pay it back whenever you will demand. It doesn't matter you've been keeping in the current account, saving account, or you've been keeping in the FD, the bank need to pay it back. ठीक है. अब जैसे वो पैसा बैंक पे है, बट बैंक को वो वापस लौटाना है जब भी आप डिमांड करेंगे थ्रू दी ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और फ्रॉम योर चेकबुक, तो वो बैंक की हो गई लाइबिलिटी. लोन्स जो होते हैं, जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, दैट मनी इज विद यू बट यू हैव टू पे बैक टू द बैंक. दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज एन एसेट टू द बैंक. अब देखिए,
जो भी बैंक से आप लोन लेते हैं उसको आपको ईएमआई की फॉर्म में रिटर्न करना होता है, दैट इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट दैट यू नीड टू पे बैक। ठीक है, जब तक आप अपना लोन रेगुलरली पे करते रहते हैं तब तक हम कहते हैं द लोन इज बेसिकली अ गुड लोन। ठीक, बट समहाउ व्हेन द पीपल स्टॉप पेइंग द ईएमआई टू द बैंक, और बैंक को जब पैसा मिलना वापस बंद हो जाता है तो बैंक क्या कहता है, दैट माई लोन विच वॉज गुड नाउ टर्न इनटू समथिंग कॉल्ड बैड। Okay, so good loans are basically those which are those from which the bank is keep on getting the EMIs on time, and the bad loans are basically those from which the banks are basically facing problem in terms of recovering the money, तो उनको आप bad loan का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें, अगर हमारे लोन्स असेट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि दीज आर बेसिकली दी बैड असेट्स ऑफ द बैंक बिकॉज बैंक्स आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट एंड द बैंक्स आर फेसिंग प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए एक चीज और होती है कि जब तक बैंक से, जो भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, अगर कस्टमर उसको टाइम पे रिटर्न करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई, तो हम ऐसा भी कहते हैं कि द असेट्स ऑफ द बैंक्स आर बेसिकली परफॉर्मिंग। ओके, द बैंक्स असेट्स आर बेसिकली परफॉर्मिंग। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप ईएमआई देना बंद करते हैं या जो भी कस्टमर ईएमआई देना बंद करता है तो हम क्या बोलते हैं कि बैंक की असेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो बैंक उसको नाम देता है फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इन केस ऑफ ए बैंक। ठीक, पॉइंट ये है कि कब हम ये बोलें कि अब ये तय है कि दिट इज बेसिकली बीइंग काइंड ऑफ डेफिनेट दैट द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू गिव द मनी बैक, तो हमारे इंडिया में एक लॉ है जिसका नाम है सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। आई एम रिपीटिंग द फुल फॉर्म, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest act। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर कोई भी कस्टमर 3 महीने यानी कि 90 डेज कंटिन्यूअसली, इफ द पर्सन इज नॉट पेइंग द इंटरेस्ट और यू कैन से द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट बोथ, अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिफाइन कर देता है। So what is the meaning here? Non-performing asset is basically an asset from which the bank is not able to recover the money for continuously 3 month, यानी कि 3 महीने तक बैंक को उससे पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए जो एक बैंक होता है उसको नॉर्मली काम क्या है, बैंक का काम होता है कि आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करके आपको बाद में उसी पैसे को लोन के रूप में आपको प्रोवाइड करना। सो बेसिकली बैंक इज वर्किंग एज अ चैनलाइजर ऑफ व्हाट, सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। वो सेविंग्स को टर्न करता है, चेंज करता है किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखिए बैंक का काम ये नहीं है कि बैंक अननेसेसरी के मतलब आप मानिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में पड़ेगा कि अगर आप डिफॉल्ट करते हैं या फिर आप कहीं गायब हो जाते हैं या कहीं आप जानबूझ के लोन वापस नहीं कर रहे हैं या बैंक से कोई बंदा आया आपने उसे पीट के भगा दिया या आपने उसकी पिटाई कर दी, जो भी किया। ठीक है, तो बैंक का बेसिकली काम ये नहीं होता है। बैंक में आप देखेंगे जब आप जाएंगे वहां पे आपको सोफिस्टिकेटेड लोग मिलते हैं, एकदम बढ़िया से ड्रेस्ड अप, अच्छे खासे जो कपड़े पहने हुए हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मेल्स, पैंट शर्ट टाई, दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे वेयरिंग, एंड इफ यू टॉक अबाउट द लेडीज दे वेयरिंग अ वेरी गुड सलवार सूट और दे वेयरिंग इन अ वेरी गुड अटायर दैट इज कॉल्ड साड़ी। ओके, तो उन लोगों का काम ये नहीं होता कि घर पे आके वो इस तरह से आपसे लोन की डिमांड करें, क्योंकि देखिए वो बैंक का काम नहीं है। बैंक का काम है आप शराफत से पैसे लेके गए हैं तो शराफत से पैसे वापस कर दीजिए। ठीक, अब देखिए पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 2002 में एक लॉ बनाया जिसका नाम है सरफेसी एक्ट 2002, जिसके अंदर बैंकों ने कहा कि देखिए सर हमसे नहीं हो पाता है, लोग आते हैं पैसे ले जाते हैं डिफॉल्ट करते हैं और हमारे बस की नहीं है कि जा जाके हम उनसे पैसा रिकवर करें, बिकॉज लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है एक काम करो, हम आपको ऑप्शन देते हैं इस लॉ के अंदर कि जो लोन आपसे आराम से रिकवर हो जाए आप रिकवर कर लो, जो आपसे रिकवर नहीं होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू काइंड ऑफ ए कंपनी कॉल्ड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की हम कंपनी बनाएंगे। ठीक है, इन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा आरबीआई के अंडर। ठीक है, सो अंडर दिस लॉ सेक्शन 3 बेसिकली प्रोवाइड्स अबाउट द एआरसीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और ये बेसिकली कंपनियां वो होंगी जो रिकवरी करने में आप मान के चलिए माहिर होंगे, दे हैव एन एक्सपर्टाइज इन टर्म्स ऑफ रिकवरिंग द मनी। अब देखिए बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं ना कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो घर पे आते हैं, वो पिटाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, शोर मचाते हैं।
ऐसा कुछ नहीं करते हैं। देखिए, these people are basically those who are having an expertise in terms of recovering money through legal means, लीगल तरीके से पैसा आपसे रिकवर करते हैं। ठीक, तो देखिए पॉइंट क्या निकल के आता है, जिन लोगों से बैंक आराम से रिकवर कर लेता है दैट इज टोटली फाइन। जिनसे वो रिकवर नहीं कर पाता है, बैंक क्या करता है, उनके लोन्स को, एआरसीज को, दे हैव एन ऑप्शन टू सिंपली सेल। ओके, दे कैन सिंपली सेल दी लोन्स टू दी एआरसीज। ठीक, अब देखिए मान लीजिए देयर इज अ बैंक कॉल्ड एबीसी बैंक लिमिटेड। ओके, देयर इज अ बैंक कॉल्ड एबीसी बैंक लिमिटेड। ठीक, अब एबीसी बैंक लिमिटेड से मिस्टर एक्स ने एक लोन लिया एंड नाउ द पर्सन इज नॉट गिविंग द मनी बैक। और मान लीजिए जो बकाया है, द मनी दैट नीड टू बी रिसीव्ड बाय द बैंक इज ₹1 करोड़। बैंक ने कोशिश करी आराम से रिकवर करने की, बैंक से रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो सरफेजी एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी जिसका नाम है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो आरबीआई की परमिशन के साथ बनी है, तो उस केस में क्या है, ये जो बैंक है ये जाएगा एआरसी के पास कि भैया देखो तुम्हारे पास एक्सपर्टाइज है पैसा रिकवर करने की, एक काम करो, ये मिस्टर एक्स वाला लोन आप खरीद लो एंड यू रिकवर इट। एआरसी क्या करेगा, इस लोन को स्टडी करेगा और स्टडी करने के बाद देखेगा इज देयर रियली अ चांस टू रिकवर द मनी और नॉट। और मान लीजिए एआरसी को लगा कि हाँ चांस है, पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऑफर दिया एबीसी बैंक लिमिटेड को कि सर मैं आपका 1 करोड़ का लोन, आई विल परचेज इट फॉर ₹60 लाख, मैं 60 लाख का परचेज करूंगा। ठीक है, अब देखिए लोन तो 1 करोड़ का है, एट व्हाट प्राइस दे वांट टू बाय, दे वांट टू बाय एट ए प्राइस ऑफ ₹60 लाख। तो बैंक कहेगा सर 60 लाख कम नहीं है, तो एआरसी क्या जवाब देगा, देखिए सर मैं आपको उस लोन के 60 लाख रुपीस दे रहा हूं जिससे आपको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर लोन एट इवन 60 लाख रुपीस, बिकॉज व्हाट इफ आई विल नॉट बी एबल टू रिकवर, और अगर मैं रिकवर नहीं कर पाया तो मुझे पूरे 60 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बैंक बोलता है सर अगर आपने पूरा रिकवर कर लिया, तो कहता है हाँ सर मुझे प्रॉफिट होगा, पर सर मैं रिस्क भी तो ले रहा हूं इसके लिए। सो पॉइंट इज व्हाट, व्हेन द एआरसीज आर बाइंग द लोन्स ऑफ द बैंक्स व्हिच आर बेसिकली बैड लोन्स, ठीक है, so they are not paying the complete amount of money, they are simply bargaining and then after that they are being paying them x amount of money। अब देखिए एबीसी बैंक लिमिटेड को एक तरीके से तो पूरा लॉस ही है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिकवर, बट यहाँ पे अगर वो 60 लाख का भी लोन उसको सेल कर देंगे, देन स्टिल यू कैन से दे विल बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, कि कम से कम कुछ तो मिलेगा। तो मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, लोन सेल कर दिया, एंड देन यू कैन से लोन इज बीइंग ट्रांसफर टू हुम, टू द एआरसी। नाउ एआरसी विल रिकवर द मनी। अब हो सकता है देखिए एआरसी को पूरा पैसा रिकवर हो जाए एंड दे विल बी इन प्रॉफिट ऑफ 40 लाख, और हो सकता है उनको रिकवर ना हो पाए, दे विल बी इन लॉस। सो दैट इज टोटली ऑफ द हेडेक ऑफ द एआरसी। अब देखिए जिस तरह से ये बैड लोन इसको ट्रांसफर किया गया है इस एआरसी कंपनी को, तो आप कह सकते हैं दीज कंपनीज आर बीइंग बेसिकली बीइंग फुल ऑफ बैड लोन्स ऑफ द बैंक्स। ठीक है, तो एक तरीके से मान के चलिए ये सारे के सारे जो एआरसी हैं ये बैंकों के बैड लोन्स को कैरी करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर इट बिकॉज दे परचेज्ड इट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसलिए देखिए हम कह सकते हैं टेक्निकली वी कैन से दीज आर दोज बैंक्स which are basically carrying the bad loans of the various banks. That's what the name has been given to them as a bad bank in our country, किनको बैड बैंक का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करके चलें तो यहां पे जो पॉइंट्स देखिए मैंने लिखा है, बैड बैंक विल वर्क लाइक एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गिवन अंडर द सरफेसी एक्ट। ARCs are given under section 3 of the Surface Act 2002 and are registered under the ambit of RBI। आगे देखिए, an asset reconstruction company is a special type of financial institution that buys the debtors, debtors means the bad loans only, of the bank at a mutually agreed value। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 करोड़ का लोन 60 लाख में परचेज किया, and attempts to recover the bads or associated securities by itself, यानी कि वो कोशिश करेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है जब कंपनीज के रिलेटेड लोन होते हैं, सो इफ दे विल बी एबल टू बाय, फाइंड अ सूटेबल बायर टू बाय दैट कंपनी, तो वो उसको बेच के पैसा रिकवर कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, देन दे विल सिंपली गो थ्रू द लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द आईबीसी एंड द अदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, एंड देन दे विल बी एबल टू रिकवर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बट ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिया में जो फर्स्ट एआरसी थी उसका नाम है ARCIL, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, वाज द फर्स्ट कंपनी इन अ कंट्री दैट वाज सेट अप अंडर दिस एक्ट। ओके, तो ध्यान रखिएगा
ARCs को RBI के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है। कुछ कंपनीज के एग्जांपल दूं आपको, Alchemist ARC Limited, ARC India Limited, Phoenix ARC Private Limited. So these kind of companies you will find in case of our country. अब देखिए, ये जो ARCs हैं, इनकी जो कैपेसिटी है बैड लोन को बाय करने की, दैट इज बेसिकली दे आर बीइंग एबल टू बाय द लोन्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, छोटे मोटे लोन 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ छोटे मोटे लोन ये परचेस कर लेते हैं। बट पॉइंट क्या है, व्हेन इट कम्स टू बिग लोन्स लाइक द लोन्स वर्थ ऑफ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ एंड सो ऑन, यानी कि जो बड़े बड़े लोन है 500 करोड़ 1000 करोड़ के, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये उनको परचेज कर पाए। ठीक है, अब आप जानते हैं हमारे इंडिया में व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट बैंक्स, these banks are being facing massive problem in terms of bad loans, यानी कि bad loans भर भर के इनके पास है, and these are basically those bad loans which are being mainly defaulted by the corporates। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल के केस में तो बैंक मान के चलिए आई विल से पैसा रिकवर कर लेता है, क्योंकि होम लोन है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका घर बेच देंगे, अगर आपने कार लोन लिया, अगर आपने कार लोन वापस नहीं दिया तो आपकी कार लेके आपकी कार बेच देंगे। ठीक है, केवल और केवल एक जो लोन बचते हैं वो बचते हैं पर्सनल लोन, जिसके केस में मान के चलिए बैंक को प्रॉब्लम होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी तो होती नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। अब मान लीजिए आपने घूमने फिरने के लिए लोन लिया कि दैट यू वांट टू गो टू जर्मनी फॉर अ हॉलीडे। ठीक है, जैसे भी अक्टूबर फेस्ट चल रहा है जर्मनी में, कि आपको अक्टूबर फेस्ट जाना था, जर्मनी में बियर फेस्टिवल लगा हुआ है कि आपको घूमने जाना है, आप घूम के आ गए। अब आपको ये थोड़ी कहेंगे भैया तुम पैसे वापस नहीं दे रहे हो तो अब एक काम करो, तुम जहर पी के दिखाओ। Are you getting what I'm trying to say? So they basically don't do such kind of a thing। तो यहाँ पे अगर एक बार लोन चला गया तो मान के चलिए पैसा डूब गया आपका। ठीक है, बट पॉइंट है पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा होती है 14-15% की, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है, लोग डिफॉल्ट करते हैं बट बहुत बड़ा इशू इसके अंदर नहीं आता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि छोटे मोटे लोन तो वो रिकवर कर लेते हैं। अब जब मान लीजिए कॉर्पोरेट्स वाले 2-3 हजार करोड़ के लॉस देते रहे, सब माले की कंपनी हो गई, जेपी ग्रुप हो गया, DHFL हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो उनके केस में कैसे पैसे को रिकवर किया जाए। ओके, दो वी हैव अ लॉ कॉल्ड IBC 2016, बट मान के चलिए दैट इज प्रोसेस इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ वेरी लेंथी, और अगर बैंक उसके अंदर पढ़ते हैं तो उसमें भी काफी लंबा टाइम लग जाता है। तो देखिए हुआ क्या, 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे की आपको बात बताऊं, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे। बैड बैंक कौन? इट्स अ काइंड ऑफ एन ARC ओनली, जो बेसिकली सरकारी बैंकों के जो बैड लोन है उनको अपने कंट्रोल में लेके एंड दे विल डू द रिकवरी पार्ट। और नाम क्या दिया गया उस टाइम? द नेम वाज पारा, पब्लिक सेक्टर asset rehabilitation agency was the name given that point of time, but the point is that wasn't materialized। ठीक है, वो पूरा नहीं हो पाया। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बजट 2021-22 के अंदर फिर से बैड बैंक के रिगार्डिंग बात करी। ठीक है, बैड बैंक की बात है कि हम बैड बैंक बनाएंगे, और इस टाइम दिस टाइम यू कैन से द थिंग हैज बीन मटेरियलाइज्ड। ठीक है, अनाउंस करने के बाद आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई बैड बैंक, और उसका नाम क्या दिया? दे हैव गिवन अ नेम कॉल्ड NARCL। Okay, the name has been given as an NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited। अब जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, NARCL has been incorporated under the Companies Act and has applied to Reserve Bank of India for license as an asset reconstruction company in our country। अब देखिए है क्या, इसके अंदर जो 51% ओनरशिप होगी कंपनी के अंदर, वो होगी हमारी सरकारी बैंक होगी। दैट मींस सरकारी बैंक्स आर बेसिकली दोस्त हु आर गोइंग टू पुट मनी टू इनिशिएट वन कंपनी। ठीक है, एंड दैट नेम विल बी NARCL। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या है कि व्हेन द NARCL इज बीइंग स्टार्टेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक, तो बात ये हुई है कि दिस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनिशियली एज पर अनाउंस डिटेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they are going to acquire bad loans worth of around 2 lakh crore of the government owned banks। कि सरकारी बैंकों के जो लोन्स हैं खराब, सोचिए 2 लाख करोड़, सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड लोन, कि इन लोन्स को ये लोग अपने अंडर कंट्रोल में लेंगे। ओके, अब देखिए पॉइंट क्या है, आगे पढ़ेंगे। देन देयर इज अ वन मोर कंपनी इन द नेम ऑफ IDRCL, इंडिया डेट रिकवरी कंपनी लिमिटेड। ओके, सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड IDRCL। India Debt Resolution Company Limited is a service company operational entity
which will manage the asset and engage market professionals and turnaround expert. Public sector bank and the public financial institutions will hold a maximum 49% stake and the rest will be with the private sector lender. तो देखिए तरीका क्या है यहाँ पे बताने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए देयर इज अ बैंक कॉल्ड SBI और उनके पास एक बैड लोन है जिसका अमाउंट है लेट्स सपोज 1090 करोड़। इमेजिन दैट इज द अमाउंट दैट दे वांट टू रिकवर। ठीक है, अब ये इनसे रिकवरी नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, ये बेसिकली इस लोन को ऑक्शन करते हैं। देखिए नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, दे नीड टू ऑक्शन दिस लोन। ऑक्शन मींस कि ये चाहते हैं कि इस लोन को दे वांट टू सेल एंड दैट लोन कैन बी परचेज बाय दी एनी ARC। ठीक है, अब देखिए ARC जो है वो बिड करेंगे कि हम इस लोन को परचेज करना चाहते हैं बिकॉज इफ वी विल बाय इट, ठीक है, देन वी विल सिंपली रिकवर। अब देखिए मान लीजिए 5 ARCs ने बिड करी। एक ने बोला इस लोन को आई विल परचेज एट 500 करोड़ रुपीज, दूसरे ने बोला आई विल बाय इट 550, थर्ड ने बोला 600, फोर्थ ने बोला 610, फिफ्थ ने बोला 620। अब ऑब्वियसली बात है SBI उस बैंक को चूज करेगा द वन हु इज गोइंग टू ऑफर द मैक्सिमम वन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस लोन को 620 करोड़ पे सेल कर दिया। नाउ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल बी एबल टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रॉम द ARC एंड यू कैन से दे विल सिंपली से कि हमें इस लोन से इतनी रिकवरी हो गई और जो बाकी हो गया वो हमें हो गया लॉस हो गया। ठीक है, अब जब ARC को इसको बेचा गया है तो अब ये लोग रिकवर करेंगे। नाउ दे विल गो एंड दे विल रिकवर बट द पॉइंट इज व्हाट, they need to pay the complete amount of money in just one go to the State Bank of India. State Bank of India का पूरी पेमेंट वो कर देंगे and now that is a complete headache of the ARC to recover the money। इस तरीके से काम चलता है नॉर्मली। बट देखिए NARCL के अंदर काम कैसे होगा, जैसे कि गवर्नमेंट बैक्ड है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट है, तो यहां पे देखिए काम करने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए NARCL ने बोला इस लोन के लिए as the State Bank of India is not able to get a good amount of money here by selling it this asset in the market, NARCL is going to provide the maximum value margin। NARCL ने बोला ठीक है इतने का लोन है, I will buy it 1000 करोड़ रुपीस का मैं इसे परचेज कर लूं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली क्या था यहाँ पे कि दैट यू नीड टू मेक द कंप्लीट पेमेंट हियर इन जस्ट वन गो, बट क्या किया जाएगा, NARCL इसकी 15% पेमेंट इनको इमीडिएटली कर देगा। दैट मीन्स दे विल डू द पेमेंट ऑफ 150 करोड़ रुपीस इमीडिएटली। ठीक, पैसा मिल गया। रिमेनिंग 850 करोड़ रुपीस अब देखिए है क्या, NARCL को गवर्नमेंट की सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पीस ऑफ पेपर इशू किए हैं जिसको आप बोलते हैं गवर्नमेंट गारंटी रिसीट के नाम से कुछ पेपर जारी किए हैं और रिसीट के अंदर गवर्नमेंट का अमाउंट जो है वो है आपका 30,600 करोड़ रुपीस। यानी कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से इनको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिए हैं कि देखिए इन चेक्स का अमाउंट इतना है, जरूरत पड़ने पे आप इनको हमारे पास आके कैश करा सकते हैं। दैट यू कैन सिंपली कम टू मी एंड यू कैन एनकैश इट इफ इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो NARCL क्या करेगा, इस 850 करोड़ रुपीस की इन रिसीट में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इतने की गवर्नमेंट गारंटी रिसीट दे देगा और उनसे कहेगा भैया अब तुम वेट करो, जब मैं लोन रिकवर कर लूंगा देन आई विल पे यू द रिमेनिंग 850 करोड़ रुपीस। गेटिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना कैश लेके इतने की रिसीट लेके चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है कि NARCL जब इसको रिकवर करेगा और रिकवर करने का काम किसका होगा, रिकवरी वर्क विल बी डन बाय दी IDRCL जो इसके साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, IDRCL क्या करेगा, मार्केट जाके इस लोन को रिकवर करेगा थ्रू द लीगल मींस, थ्रू द IBC लॉ और द अदर, रिकवर करने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए पूरा का पूरा 1000 करोड़ रुपीस रिकवर हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 150 पहले दे चुके हैं, 850 का कैश और दे देंगे और जो रिसीट इनको दी गई थी दे विल सिंपली टेक इट बैक। काम खत्म, नॉर्मली काम खत्म हो गया। ये हुआ जब व्हेन दे आर बीइंग एबल टू रिकवर द कंप्लीट अमाउंट ऑफ मनी। बट व्हाट इफ दे विल बी एबल टू रिकवर ओनली 900 करोड़ रुपीस, केवल 900 करोड़ रुपए रिकवर हुए। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो उस केस में क्या होगा, NARCL ने जो इनको रिसीट दी थी 850 करोड़ रुपीस की, उसमें से आप देखेंगे दे वर सपोज टू रिकवर
1000 करोड़, बट रिकवरी कितनी हुई 900 करोड़ रुपीस की। तो ये क्या करेंगे, एसबीआई क्या करेगा, जो बाकी कैश है, दैट मीन्स फ्रॉम 900 माइनस 150 हाउ मच, 900 में से 150 गए, आपके बचे 750। तो 750 करोड़ रुपीस इनको कैश दे देगा। 150 पहले मिल गए हैं, कितने हो गए 900। और बाकी जो 850 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट गारंटी रिसीट थी, इसमें से दे विल कीप दिस मच रिसीट विद देम, यानी कि 850 में से 750 करोड़ रुपीस की रिसीट इनको रिटर्न कर दी, बिकॉज दे हैव गॉट द कैश आउट ऑफ इट। और जो बाकी अमाउंट इनका बच गया, आप कह सकते हैं नाउ दे विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट से कहेंगे सर आपकी रिसीट है गारंटी वाली कि एनएआरसीएल पैसा रिकवर करके देगा, इनसे रिकवरी सर 100 करोड़ की नहीं हो पाई, नाउ यू विल गिव इट टू मी। तो आप कह सकते हैं आपका पैसा मेरा पैसा, ठीक है, आपका पैसा मेरा पैसा, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, that money will be simply used by the government of India to simply give it to SBI of this 100 crore rupees which this NARCL will be short of। तो सोच के देखिए इस बात को, पहले बैंकों ने उन लोगों को पैसा दिया जिन्होंने ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक को पनिश करने की जगह यू कैन से दे आर बेसिकली यूजिंग आवर मनी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग केयर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब कल को मानकर चलिए अगर ये NARCL अपने काम में ठीक नहीं चल पाया और ये बर्बाद हो गया मान लीजिए, then how they will be able to revive it? Again you can say it's because it's by way of your money and my money, taxpayers money, they will simply again use our money for the purpose of reviving this NARCL। तो देखिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, बहुत ही सिंपल बात नहीं है। getting what I'm saying? Because banks are basically running this bad bank by way of आर मनी। जो बैंकों में हमने पैसा दिया है, उस बैंकों का उस पैसे को इस्तेमाल करके बैंक ने प्रॉफिट कमाया और फिर उसको बैड बैंक बनाने में इस्तेमाल किया गया है। एंड ओवर एंड अबव इट्स द गवर्नमेंट हु इज प्रोवाइडिंग द गारंटी। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है काम करने का, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे। IDRCL is a service entity that we have read. Existing ARC have been helpful in resolution of stressed asset, especially for smaller value loans. Various available resolution mechanisms, including the IBC, have proved to be useful. However, considering the large stock of legacy of NPCs, specifically mentioned कि legacy means ये कहना चाह रहे हैं बहुत पुराने लोन हैं. That means it was in the earlier government that basically happened. Additional options, alternative are needed, and the NARCL IDRCL structure announced in the union budget in this initiative. ठीक है, आगे देखिए। Resolution mechanism of this nature which deal with the backlog of NPS typically requires a backstop from government. This imparts credibility and provides for contingency buffers. Hence, government of India guarantee of up to 30,600 crore rupees will back security receipts issued by NACL. The guarantee will be valid for 5 years. The condition precedents for invocation of guarantee would be resolution for liquidation. The guarantee shall cover the shortfall between the face value of the these security receipts and the actual realization. The government of India's guarantee will also enhance liquidity of that such receipts, and as such SRs are tradable. Getting what I'm trying to say? तो देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके से इसका पूरे का पूरा डिजाइन किया है। अब पॉइंट ये आता है कि रिसेंटली ये न्यूज में क्यों थे और आज ये न्यूज़पेपर में क्यों अपीयर हुए हैं। देखिए नॉर्मली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि अगर कोई भी एआरसी कंपनी बनी है, एंड दैट एआरसी इज ऑब्वियसली रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई ओनली, अगर रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर यानी कि विद इन 1 ईयर अगर वो एआरसी कोई भी बैड लोन एक्वायर नहीं करती है, ओके, दैट मीन्स फॉर द वन लास्ट ईयर दे आर डूइंग नथिंग एंड दे आर जस्ट सिटिंग, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। That is what the law we have as per the current regulation of ARCs by the Reserve Bank of India. Okay, अब देखिए है क्या, ARC बने हुए ऑलमोस्ट बैड बैंक बनाया है जिसका नाम है NARCL। इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया और मान के चलिए नॉट इवन ए सिंगल लोन, नॉट इवन ए सिंगल बैड लोन दे हैव एक्वायर्ड। ठीक है, अभी तक एक लोन भी इन्होंने एक्वायर नहीं किया है। तो हो सकता है कि अगर ये लोन एक्वायर ना करें तो इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसीलिए मान के चलिए आज न्यूज में आया है कि नाउ दे आर गोइंग टू एक्वायर द लोन्स
of around 30,000 crore rupees something. Under that, in the first phase, they are going to acquire the loans of JP Infrastructure, Meenakshi Energy, Mittal Corporation, and then in the second phase, they're going to acquire loans of 18,177 crore rupees, and the company name was Coastal Evergreen, Rolta, McKinley Bharat, among other companies. ठीक है, और थर्ड जो फेज में एक्वायर करेंगे कंपनी का, उसके बारे में हमें पता लगेगा। अब देखिए यहां पे एक चीज देखा है, लेंडर्स टू होल्ड स्विस ऑक्शन आफ्टर रिसीविंग बाइंडिंग ऑफर फ्रॉम NARCL। यानी कि मान लीजिए, देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन इट कम्स टू सेलिंग अ पर्टिकुलर लोन, तो बिडिंग की जाती है कि कौन ARC कितना पेमेंट कर सकता है। तो यहां पे देखिए बैड बैंक को गवर्नमेंट ने बोला है कि यहां पे आप इनको प्रेफरेंस दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अ लोन ऑफ SBI विच दे वांट टू ऑक्शन, ओके, सेम एग्जांपल, इमेजिन 1090 करोड़ रुपीस। अब देखिए जैसे ही ये लोन बेचने की बात करेंगे, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी लॉट ऑफ ARC विल कम फॉरवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग दैट लोन। तो यहां पे जो प्रायोरिटी दी गई है कि हु विल एक्वायर दिस पर्टिकुलर लोन, प्रायोरिटी दी गई है यहां पे NARCL को। NARCL को प्रायोरिटी दी गई कि भैया आप बताओ आप कितने में खरीदेंगे। एंड वंस दे विल सिंपली प्रोवाइड, मान लीजिए इन्होंने जो बिड दी हमारे एग्जांपल में वो थी 1000 करोड़ रुपीस की, सो नाउ यू कैन से वट एवर बिड दे हैव प्रोवाइडेड दैट माइट बी चैलेंज बाय द अदर ARCs ऑल्सो, बट द पॉइंट इज व्हाट, द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू NARCL। और NARCL ने अगर मान लीजिए एक बार ये बिड दे दी, ठीक है, और कोई भी ARC उसको मैच नहीं कर पा रही, उससे ज्यादा नहीं दे पा रही है, तो मान के चलिए ये है कि दैट इज समथिंग बाइंडिंग ऑन दी NARCL टू सिंपली बाय इट एंड रिकवर। और उसके बाद फेज स्टार्ट होगा आपका 1585 वाला मॉडल स्टार्ट हो जाएगा कि 15% विल बी सिंपली, यू कैन से, विल बी पेड अपफ्रंट एंड द रिमेनिंग 85% ऑफ द मनी दे विल बी एबल टू रिकवर। वंस दे विल रिकवर देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी विल बी पेड। और अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो उस केस में क्या होगा, they will simply issue the government guarantee receipts and they will get it encashed with the government of India। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सर आजकल जो बैंक नेशनलाइजेशन की बात है या जो भी है, क्या वो ठीक है या गलत है या जो भी है। अब देखिए उससे रिलेटेड जो बात है वो हम आने वाली अपनी और यूट्यूब की क्लासेस में करेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली मुझे आपको इतना ही बताना था बैड बैंक के बारे में। अब ये आप सोचिए कि ये काम करने का तरीका ठीक है या नहीं है, कि हमारे पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं है। दैट इज टोटली अप टू यू टू डिसाइड। getting what I'm saying? So that is the brief about the bad banks working. I hope आपको समझ में आया होगा और आपको अपने एग्जाम में, और देखिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपका मेनली रिलेवेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। Getting what I'm trying to say? That is one part. So now before ending the class, as you know, doubt darbar is going on, so you know this thing, 3 days are being left कि 27 September को you can go for the history and geography, and on 28 September you can go for economy, environment and science and technology. The timing will be 5 p.m. and then on 29th you can go for the polity, current affairs and IR, and the timing will be 7 p.m. So that is what the timings are when it comes to, you know, doing the doubt session. तो अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, एनरोल कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, एंड आई रियली होप दैट यू पीपल understood what I tried to make you understood. And then after that, as you know, I'm again repeating, please join my course which I'm starting from 10th of October 2022. Timings will be announced this particular week only, and then you know this thing, I'm going to cover everything from a comprehensive perspective for both prelims and mains examination. And while joining the course, please use my code PGUPSC is my code that you can use, and you will be able to get 10% off here. चलिए, thank you very much, take care and bye bye.